Dr. Kalaignar have taken the feeding program and contributed to its steady evolution. Gradually, its focus shifted to addressing nutritional issue and checking dropouts from schools. Sir, the purpose was the same when Kamraj expanded the program to all schools across the state. So they wanted to see more students from poor socio-economic backgrounds enrolling in school. The midday meal dish was the boon for students from scheduled castes and the backward communities, on 5 eggs and the bananas to be supplied along with the midday meal in government schools. Sir, even after the development of midday meal scheme, Tamil Nadu found the gap in achieving the universalization of school education to all. Hence, it realized that the overall development of the nation and the state education must be made easily available to all. But poor people in rural as well as the urban area failed to send their children to school due to several reasons. Keeping it on mind, as a part of that, Tamil Nadu government has started another schemes providing free bicycles to students, initiated by Dr. Kalaignar. The name of this scheme is Free Bicycle Scheme. Dr. Kalaignar made higher education free for first generation learners and even launched the EVR Nagamai Memorial free graduate education for school schemes. He was constantly launching similar schemes that made education accessible to everyone, especially the underprivileged section of society. There was 50% reservation for rural students in professional course. Entrance exam for professional courses was scrapped. In 1989, sir, in 1989, sir, he introduced a free bus pass scheme for the school students to go to school. Free computer training for the school. We are discussing on Chandrayaan, Manya Mohammed. Yeah, I'm coming back to the point. Please. Yes, I'm coming back to the point. Yeah, this is how our backward scientists came to ISRO. I'm just explaining. Come to the subject. Yes, sir. These are just a few of the many schemes did by the Dr. Kalaignar. And even now, it is being continued under the leadership of our Honorable Chief Minister Thalapathy M.K. Stalin, aims to optimize social welfare gains by twiddling a century-old scheme to offer the first meal of the day, that is called as a Tamil Nadu Chief Minister Breakfast Scheme right now, sir. Sir, as Mr. is not here, I think so, Mr. Ramesh Jairam said, it is a journey of 60 years of Indian education. But in Tamil Nadu, it has its own journey of about 100 years through the Dravidian ideology. Through this, we have contributed not only to our state and also to the nation. This is what I want you to point out now. And this is how the uniqueness of our federal system contribute to the nation building. The others are criticizing our welfare scheme as a freebie, but we are investing it for the development of the nation in view of social justice. Sir, that's why we are proudly calling it as a Dravidian model, sir, which is much needed for this time, for this country, not only for the scientific development, in all the development. With that, I conclude, sir. Thank you. Thank you. Now, Dr. Sop Kumar Mittal, 5 minutes. और माननीय सदस्यगण, आपको मालूम है जो विषय है डिस्कशन का, उसी पर हमें बोलना है, नॉट अदर पॉइंट्स रिलेटेड. सो प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, प्लीज. यू नो द रूल्स. धन्यवाद महोदय. आज मुझे इस नए सदन में चंद्रयान के ऊपर बोलने का मौका दिया जा रहा है. मैं इसका अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद हूं. और सबसे पहले मैं इसरो के अध्यक्ष श्री सोमनाथ जी और उनकी टीम को और उनकी पूरी संस्था को इस सदन की तरफ से, अपनी तरफ से, देश की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे विश्व में भारत का परचम फहरा दिया है. सर, 1965 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान. बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने पोखरण के दौरान इस नारे में संशोधन किया और कहा, जय जवान जय विज्ञान, जय किसान जय विज्ञान.
और मुझे वो समय याद है 3 जनवरी 2019 को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इंडियन साइंस कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए आए। उन्होंने इस नारे में और संशोधन किया और उन्होंने कहा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और उन्होंने एक नया शब्द जोड़ा इस नारे में, जय अनुसंधान, और पूरा नारा बना जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। और मैं खुशकिस्मत हूं कि जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह नारा दिया, मैं उसका साक्षी हूं। माननीय सर, और मुझे खुशी है, थैंक यू, और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के उस नारे की वजह से आज हमारा देश चंद्रयान की सफलता के पूरे विश्व में जोर शोर से मना रहा है। मैं इसके लिए फिर अपने पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहूंगा। सर, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की और उसके एक सप्ताह बाद हमारे देश का एक पवित्र त्योहार आता है, रक्षाबंधन। जिस प्रकार हर बहनें अपने भाई को राखी भेजती हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, पूरे देश को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे देश की 70 करोड़ बहनें चंदा को, जिसको चंद्रमा को, जिसको हम चंदा मामा भी कहते हैं, चंद्रयान के रूप में एक हमने राखी भेजी है। माननीय महोदय, चांद का हम सभी के जीवन से एक भावनात्मक जुड़ाव है, संबंध है। बचपन की लोरी चंदा मामा दूर के सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। और बॉलीवुड की हम बात करें तो मेरे ख्याल पुरानी मूवीज में कोई भी गाना ऐसा नहीं होता था जिसमें चंदा का वंदन नहीं होता था। जैसे चांद सी महबूबा हो मेरी, या चंद्रमा में भी एक दाग है, तो इस तरीके के हम गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग तथ्य है कि एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, मिशन इम्पॉसिबल, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिक्शन पर थी, लेकिन उसका बजट क्या था हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की सफलता से उत्साहित ही हुए, नीचे नहीं गए, और चंद्रयान 3 को मिशन आई एम पॉसिबल बना के हमारे सामने पेश किया। सर, चंद्रयान 3 रियलिटी है, ये फिक्शन मूवी नहीं है कि 615 करोड़ में हमारे वैज्ञानिकों ने इसको कामयाब किया। और यह हमारे लिए और भी हर्ष का विषय है कि इस मिशन में महिलाओं का भी पूरा योगदान रहा, महिलाएं वैज्ञानिकों का भी पूरा योगदान रहा। और हमारा दूसरा सदन इस टाइम महिला रिजर्वेशन पर बात कर रहा है, ये हम सबके लिए हर्ष का एक विषय है। हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड की मूवीज बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें एक मूवी थी ऑक्टोपसी। सर, सिर्फ 1 मिनट, और उसमें भारत को स्नेक चार्मर कहा गया, जादू टोने वाला देश कहा गया। सर, मैं उससे प्रेरणा लेते हुए बोलना चाहूंगा, यस, भारत जादू का देश है, यही वो देश है, उसी में ही जादूगर है इसरो, जिसने इतने कम समय में और इतने कम दाम में एक सफल चंद्रयान बना के हम सबके आगे पेश किया। यह भारत का ही जादू है और भारत ही एक जादूगर है। सर, चंद्रयान इस टाइम स्लीप मोड में है, लेकिन यह पूरा सदन, पूरा देश जागा हुआ है, और हम सब इस सदन के माध्यम से पूरे देश को बधाई दे रहे हैं। सर, एक छोटी सी मेरी बेनती है, हम 2023-24 में हमने, सर सिर्फ एक मिनट, चंद्रयान लॉन्च किया, और इसी वर्ष हमने इसरो का बजट घटा दिया। सर, जो 13,700 करोड़ था पिछले साल, वो 12,543 करोड़ रह गया। तो मेरी बेनती है सरकार से कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। और सर, अंत में मैं अपने वैज्ञानिकों को, भारतीय वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई और अभिनंदन करने के लिए 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा।
परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, हमारे वैज्ञानिक, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती निर्मला सीतारमण। So thank you very much for giving me an opportunity to speak on an issue in which the entire nation feels very proud and also has been one in voicing such a sense of pride in appreciating the ISRO. Sir, the launch of Chandrayaan 3, particularly to the south pole of the moon, India has become the first country to do so, whilst countries have launched and landed in the moon. We are only the fourth in the line. But for reaching the moon's southern pole, we are the first. Now I just want to briefly recall how in 1975, India, with the help of Soviet Union then, the USSR, launched the Aryabhatta satellite. That was a heavy satellite, but it was launched by the Soviet Union for us. So that was the first ever attempt by India's ISRO to position something in the space, to enter the space itself. But after that, if you look at this spectacular journey that the ISRO has had, this success of Chandrayaan 3 is certainly going to have a very big impact on India's industrial and technological ecosystem. It's going to directly, of course, affect positively the satellite systems area, telecommunications area, and there are very many other related fields, all of which will benefit from it. Although in 75, we needed the Soviet Union's help to launch our Aryabhatta, a space station to go into the space for the first time from India, today, as of July 23, our record is such that we have already launched 431 foreign satellites for other countries. That is, 34 different countries have utilized ISRO's facility and their knowledge systems to launch their satellites. And I'm just recalling in 1975, our Aryabhatta being launched by Soviet Union for us today, but we are in a position to launch 34 different countries' satellites, but totaling to 431. What a spectacular journey this is for ISRO. So, Chandrayaan 3, sir, also stood out, in my observation, also stood out for one particular achievement, which has a blend of innovation, has a blend of how technology and innovation working together can work for global achievements and sustainability. I remember also seeing a lot of comments which said, oh, but this is no good, it has taken this many number of days to reach there. Did it require that many number of days? Can it not be done lesser in lesser number of days? Because quoting some other countries, they said they reached the moon in 20 days, whereas you took 45 days, and so on. But the secret behind that, the fact behind that, is the innovative way in which ISRO has handled it. In that, they chose a path to reach the moon, which was not otherwise thought of, but thought only because due to the route selection, and I'm using very pedestrian language here, I'm conscious of that, using such a route selection,
ISRO made it possible to do it cost effectively, because the gravitational pulls, any magnetic fields which come in the way, I'm sorry, again a pedestrian language, can exhaust more fuel. But the way in which ISRO decided to take this Chandrayaan 3 was chosen not for a racing expedition. I'll have to reach there faster than somebody else, but I have to reach there in a cost-effective manner using lesser fuel and therefore serve the purpose of sustainability. Space research also has to be sustainable, because otherwise it becomes too expensive and cannot be afforded at all. So, innovation intertwined with sustainability, particularly in the realm of space, is what ISRO has achieved by choosing the route with which it reached the south pole of the moon. Now, the lander that is there was named Vikram probe. Obviously, the name reminds us of Vikram Sarabhai, who set up the first rocket launching station, which we are now using repeatedly. Nobody ever in India can forget the contribution that Vikram Sarabhai or Homi Bhabha did. Of course, Homi then moved over to the Atomic Energy Commission, which was carved out of the then body ISRO. So Vikram probe did something spectacular again. Having reached the South Pole, for the first time, the density and the temperature of the moon's ionosphere has been recorded. Several people went to the moon earlier, landed in the moon earlier, but we did the first thing of landing in the South Pole. But for the first time again, the moon's ionosphere and its density and the temperature there has been recorded by our Vikram probe. Interestingly, from the probe, the rover which is moving slowly on the surface of the moon, the Pragyan rover, in its exploration has unearthed groundbreaking discoveries, sir. The presence of sulfur, for instance, in the lunar south pole has come as a very big surprise to the scientific community. So, I'm happy to say Chandrayaan 3 landing in the South Pole for the first time does not just stop there, it has also created a lot more record on its own. Just going back, Chandrayaan 2 also would have achieved, but for the last minute tragic failure, but ISRO showcased to the world that it shall not be deterred by that failure. It would learn lessons. Every strand of the errors have been identified, lessons learned, and today we see that the ISRO has corrected itself to the extent that very many little errors which had crept in earlier had been removed and better solutions have been offered than what had been given in Chandrayaan 2 itself. No wonder that the chief, S. Somanath, has been received by the Indian common citizen everywhere. When he went into a flight, people stood up and clapped for him. This is the kind of respect Indians have, we our people have, for such great achieving scientists of this country. Nobody ever forgets them. And today ISRO and ISRO scientists are all very recognized by people of India, and in the process, I'll later delve into this point, they are people who have studied from tier 2, tier 3 colleges, gone into Indian Institute of Sciences and many such institutions, but they are there sitting and contributing for the future development of India and also sharing their knowledge with the entire space community all over the world. Now, if I spoke about Chandrayaan 2, sir, I'll also take this opportunity to say about Chandrayaan 1, which was launched in 2008. Even that was a wonderful, sir. Honorable members, what a sight. Look at the galleries. Look at the galleries. Jayaji,
Look at the galleries, all your gender. And you are iconic to all of them. And at a time when the Honorable Finance Minister is on legs. And this has happened right from the beginning. But that it would happen so continually is unimaginable, is spectacular. My tribute to this great power which is being unleashed in India to change it for the better and to take it to 2047 gloriously. Honorable Finance Minister. Thank you very much, sir. So I'll take this opportunity which you've given me by highlighting the women and girls in the gallery. Equally impressive, sir, and I'm sure you would have noticed it as well. And Jayaji would also probably appreciate the fact that we have... I heard it, sir, but what I wanted to say is, Jayaji, because the school children who are here, I'm so touched by the fact that they are here to observe what we are discussing. And I'm sure, yes, all the members would feel happy about the presence of the future generations of India here. She started her first movie. Oh, okay. As a school child. Honorable Leader of the House reminds me that I'm not wrong in mentioning Honorable Jaya ji's name, because she apparently acted as a school child. Yes. A student with uniform in a film. I was reflecting, honorable members, on that memorable contribution as a great artist and elevating her to iconic status, which she has sustained all throughout. Honorable Finance. Appreciations, Jayaji. Sir, I did mention about Chandrayaan 2 and wanted to move over to briefly talk about Chandrayaan 1 as well. But before I do talk about Chandrayaan 1, I want to remind myself and also place it before the honorable members in this house that on probably 7th September 2019, midnight, the Governor of West Bengal, the then Governor of West Bengal, and now Vice President of India, witnessed that landing, which of course had a problem, but along with hundreds of school children in the science city of Kolkata. And today you are reminding us about the school children who are here to listen to this debate on the Chandrayaan 3's success. So Chandrayaan 1, sir, if I can just go one step backward, was also a very successful mission. 2008, when it was launched, it discovered the presence of water on the moon's surface, and it also provided a lot of insights into the lunar geology. So obviously, each one time that ISRO had attempted to do, they have come out with extraordinary contributions to the space science, and that is now actually being used by the space community, scientist community from all over the world. And repeatedly, when we talk about ISRO, I will definitely recollect that the founders of ISRO, as I named them earlier, Vikram Sarabhai or Homi Bhabha, had all remembered that this contribution or this investment in space is an investment in future, and that it will be done for the sake of development and also for the sake of humanity. That spirit continues even today, sir. I would want to highlight that. And when I do that, it is purposely because I want to bring to the context that continuously in India, ISRO has received that kind of a support from all communities, ordinary citizens, students, children, scientific community, and from the government of the day. The kind of support that ISRO has received is something which all of us are proud of, and we'll continue doing that.
Now, but of course, much before I go into talking many more things, a theme which I want to mention here, and I would probably respond to it repeatedly, is a comment which Jairam Ramesh had made, honorable members not here, but he has made in the morning about, muscular nationalism, you leave it to the scientists. Sir, yes, and I also recall, I wasn't in the House, but I've seen it subsequently, that former President APJ Abdul Kalam had referred to Professor Satish Dhawan and said leadership should be like that, where once when a mission failed, he had said not to worry at all. Leave it, I take the full responsibility as the head. But when the next year it was corrected and they achieved success, Professor Satish Dhawan had told our former president, then scientist, APJ Abdul Kalam, the success is due to your team and the success is to you, and as a true leader, gave the credit to the team. Absolutely. Whoever would deny the scientists their contribution. But it doesn't mean that if the Prime Minister of the country stands next to a scientist or a team of scientists who worked for something, and when there is unfortunately a failure or a disappointment, to stand by them and say, don't you worry, you will be doing better the next time. And therefore I read this quote. Honorable Prime Minister stood next to Professor Sivan, the scientist, during the launch of Chandrayaan-2, which in the last minute, unfortunately, broke all our hearts and disappointed all of them as much as the scientific community when it just couldn't land. Standing next to him, who had tears in his eyes, Mr. Sivan had tears in his eyes, Prime Minister had said, last night, when he stood with him, I understood your frame of mind. The look in your eyes said a lot. That is why I did not stay here for long. We might not have reached the lunar surface as planned. You came as close as you could. Stay steady and look ahead. We are full of confidence when it comes to our space program. The best is yet to come. Unquote. These are not words of any muscular nationalism. These are truly the words of a Prime Minister who wants to stand next to his scientists even at the time of disappointment as much as the time of success. So to decry this and to say, oh, you stop your muscular nationalism, is a bit of a perversion, which I think somebody from Jairam Ramesh's experience, I wouldn't expect. Sir. And this is not the first time. When in 2014, ISRO had by that time launched 104 satellites at one go. Prime Minister Modi was one of the first ones to say, India salutes all the scientists. It was in his Twitter handle. It was there even now. So scientists are being given the due credit, and we shall continue to give due credit. Every government has done it, we also do it. But when we do it, because it's Prime Minister Modi, please don't give any other attributes which are not true. So I'll, for a minute, dwell again on the cost of the mission. And that's one of the interesting facts about Chandrayaan-2, as much as the one earlier also, about the Mangalyaan. One of the most interesting facts is that Chandrayaan-3 mission costed only around $75 million, approximately 615 crores. These are not final figures because that will have to be finalized through the department, finally tying up every expenditure. Approximately 615 crores. Then again, oft repeated comparison, sir. Our Chandrayaan-3 commanded a lesser budget when compared to some of the movies which are made on space itself.
You're making movies on space because we understand better, we want to know better, our future generation should know what it means, and therefore interesting films are made. But those films costed more than actually just Chandrayaan 3. I'll give you a random selection of film names and their cost. Interstellar costed $165 million. Passengers costed $110 million. The Martian, $108 million. Gravity, $100 million. And Chandrayaan, $75 million. As I said earlier, sir, innovative cost-cutting methods are the reason why it took a few days more, but the gravitational pull and also the magnetic fields which drag the satellite and therefore exhaust the fuel, in my pedestrian language that is, I'm sure there are some scientists who will be here who will sneer at my language, but simply put, that's the reason why they chose the track with which they could reach. Even if it takes a few more days, it costed them less, sir. So I'll come to the point that increasingly India's space programs are becoming Atmanirbhar. And the immense potential of homegrown industries and their technologies are now increasingly helping our expeditions to the space. Chandrayaan 3 benefited from this. I would like to highlight where these kind of Atmanirbhar Bharat has come to interplay with the space program. India actually through the Chandrayaan 3 has displayed and showcased its capability to design, to develop and to manufacture high-end equipments which are so required, but all domestically. Now, leading companies like Hindustan Aeronautics Limited, HAL, which provided significant mechanical hardware, and BHEL, the Bharat Heavy Electrical Limited, contributed with their titanium tanks, which was so crucial and actually helped in cutting cost as well, but a very innovative way in which we could do it. Sir, numerous private Indian firms have contributed to this, particularly in the realms of mechanical and electronic fabrication. For a minute, I want to quote Vikram Sarabhai again. He says, if we are to play a meaningful role naturally and in the Committee of Nations, with the, we must be second to none in the application of advanced technologies, unquote. Now, these advanced technologies are not just coming from HAL and BHEL. They sure are coming from HAL and BHEL, but private players today are giving these high-end technologies, and they have made it an immense contribution to the efficiencies which are now getting recorded. The kind of equipments which we see in the Chandrayaan 3 are state-of-the-art scientific instruments which are being used, all of them which are developed in India. They include seismometer, Langmuir probe instruments, thermal probe instruments, both X-ray and laser-based spectrometers. All of them have been built in India. So, I want to underline here, sir, that scientific temper, scientific achievements are absolutely praiseworthy in ISRO. But policy has also been doing a lot of rigorous changes, which has now come to help private participation in the space sector. I remember during Atmanirbhar announcements and subsequently in the budget of 21-22, we had announced a strategic disinvestment policy, particularly for central public sector enterprises, in which we said in the strategic areas
a minimum presence of the government will be there, will continue to be there. We are not going to shut every unit there, not at all. But there will not be any area in India which will not be available for private sector. That is, no area will be shut for private sector, and that policy actually has helped in getting the private sector to enter into space area, and as a result today you have innovative ideas working together with the ISRO, and that has made a lot of difference. India actually ranks 5th among countries for equity investments in space in the past decade, and that is consistently because the policy has been made more and more favorable, and as a result we are improving in getting equity funding for the private sector which wants to involve itself in space. But even today it is only 3% of all the money which goes into the space arena globally. We need to have more private funding coming, private equity coming for those private companies which want to do innovative work in the space area. Sir, you have rightly given the tone of women even at the beginning of my intervention. I would like to say how Chandrayaan 3, the landing spot in the moon, has been named Shiv Shakti. Shiv Shakti obviously denotes the Ardhanarishwara principle though, and therefore both Shiva and Shakti give the energy and the action. Therefore, I want to say it is a tribute to the women scientists who worked in that mission. Indian women scientists have contributed immensely to the space program. Women scientists, and I quote the Prime Minister here, women scientists of this mission have played a crucial role in ensuring its success. Without their contribution, this achievement was not just possible. They will inspire generations to come, unquote. Sir, about or over, slightly over 100 women staff have played a direct significant role in conceptualizing, designing, realizing, testing and executing Chandrayaan 3. Over 100 women staff inclusive of scientists. The huge participation of women shows that the scientific empowerment of women has helped, and the glass ceiling has actually been broken in ISRO for quite some time now. I'm not saying it happened yesterday, but for quite some time now. And as a result, the empowerment of women scientists, and having broken the glass ceiling, no doubt, metaphorically, they're reaching to the space. This empowerment of women scientists clearly shows that in India, there is enough opportunity and more for women, provided they're given access, given opportunity. And that is why, in this context, I like to place it on the table here, that the Nari Vandan Adhiniyam, which is being introduced in the Lok Sabha, is necessarily an instrument through which we hope the political empowerment also can be done, just as the scientific empowerment has been happening in ISRO. If that kind of access is given to women, opportunity is given to women, they can perform as well as our scientists are performing in ISRO itself in the political arena. And I'm sure when the bill comes to the Rajya Sabha, it will have a smooth passage. I'm sure all parties, all members would kindly cooperate to have that cleared. So I'd like to take, because we are talking about Chandrayaan 3, I'd like to highlight the names of those women scientists who have contributed to Chandrayaan 3. Among many others, I said more than 100 women staff, but I'm naming some of them here. Srimati Kalpana Kalahasti, Dr. Ritu Karidal Srivastava, who's known as the Rocket Women of India, Srimati Vanita Muttaya, Srimati Nandini Harinath, Srimati Anuradha TK, Srimati Maunmita Datta, and Srimati V.R. Lalitambika.
So these are scientists who have come from various parts of this country, studied in institutions which are probably in tier 2 to tier 3 institutions, but sheer wanting to perform with excellence has moved them to do many things on reaching ISRO and today contributing towards the launch of Chandrayaan-3. So if Chandrayaan-3 was a great success, there are other cosmic endeavors by the ISRO, which is launching Aditya L1, which is a space-based observatory dedicated to studying the sun. And here again, the innovative thought of the ISRO has played an important function. Its primary function is, of course, to monitor the solar corona, while simultaneously conducting direct observations of the solar wind at the point where it will be located. And that point, I think, is called Sun-Earth Lagrangian point, a point where it could stay without having to consume too much fuel because it's such a position that it can help in observing sun without any obstruction in between. So the Sun-Earth Lagrangian point, which is about 1.5 million kilometers away from the Earth going towards the sun, is a very important mission. A significant feature of this one is that it's got 7 payloads, which include the visible emission line coronagraph, which, like I said earlier, Chandrayaan, BHEL, HAL have contributed. In this case, the Indian Institute of Astrophysics, which is located in Bangalore, has contributed in this particular visible emission line coronagraph, which is going to be very important, an instrument which is going to be observing the sun. So Aditya L1, which was launched from Sriharikota by ISRO on the 2nd of September 2023, is one of those very important observatory for the sun, which India will be doing. There are 3 other countries which again have done this before, but India has now achieved it. So here again, a woman scientist has contributed in the Aditya L1. Nigar Shaji is a woman scientist who is actually behind this Aditya mission. So now I'll come for the last bits. Before I conclude, I just want to highlight a few points about how we see the future of space and ISRO in India. I just want to highlight the point that we shall continue the spirit of Vikram Sarabhai, in that achievements by ISRO shall be for the mankind. Achievements by ISRO shall be for development, and achievements will be for sharing with all. With that, actually, that's where the Prime Minister said when he looked at Vasudhaiva Kutumbakam, G20 and so on, India will continue to explore, learn and share for the betterment of all humankind. So this is what the Prime Minister said, and this is what was the appreciation also given to the scientists, and again standing by the scientists. Now I have my friend Honorable Member Jairam Ramesh. The point that muscular nationalism doesn't play here, stand next to the scientists at the time of achievement and also during disappointments. So that is a point I like to highlight, sir. More importantly, sir, it's important, in June 2023, when Prime Minister visited the United States of America, we signed an accord, the Artemis Accord. Very important, sir, in that India also will be one of those 27 countries which have signed this accord, and which is a multilateral space initiative led by US, in which one of the objectives is to send humans back to the moon through an international space station, and we shall be happily party to that. And in this context, sir, I would want to pick up on something which a former NASA Associate Administrator observed. His name is Mike Gold. He was a former Associate Administrator in the NASA.
he was behind drafting and shepherding Artemis Accord. So it is important to understand what his perspectives were when India joined this accord. I quote him, sir, saying, India will not only fill the void, this is Mike Gold saying, who's been a NASA associate administrator once earlier, who drafted and also shepherded this Artemis Accord. He says, and I quote, India will not only fill the void that Russia is leaving, but will far exceed it. The capabilities of India to engage, to innovate, to support a more robust industry, particularly in the commercial space, is going to far outstrip anything that Russia had ever been able to do, unquote. So he also says, India was a sleeping giant in the space world, but that is awakening now. Already, he says, the country has done so much with so little. Again, that frugality with which our scientists are working has been observed by the associate administrator, former associate administrator of NASA. Sir, I believe one of the honorable members in the morning while talking said, probably it's Honorable Member Jawahar Sirkar, who said, bureaucracy now should be off science. ISRO should be devoid of bureaucratic influence. Now, it's not me, it's not anybody from India, but I'd like to again recall the words of former NASA Associate Administrator Mike Gold. He says, India's bureaucratic reforms in its space efforts are helping the country move faster in that sector. So, bureaucracy is not being obstructed. They are actually, the reforms are helping him to move faster. So, moving faster is not being an obstruction. So we need to understand these reforms are taking place so that this kind of an approach where you are able to do decisions, take decisions in time is facilitating the bureaucracy. The National Science Foundation, sir, is not headed, I'm sure the minister was here, he spoke about it in the morning, National Science Foundation, with huge funds given for them to decide where that should be deployed. He is headed by a scientist, Dr. Sood, if I'm right. He heads it. No bureaucrat, no former IAS is sitting there. It is a scientist who is dealing with it. So I would like to highlight this, saying these reforms, therefore, will be transformative not just for India, but also for the US and the commercial space sector as a whole, is the observation we've heard from the former NASA associate administrator. So finally, we have, I think, the current government's policies have helped the power of youth, power of scientific community, and power of Indian startups all together are helping today's ISRO. I'm not taking more time, sir, in case you want me to conclude. There are now over 140 plus registered space tech startups, all of whom are doing brilliant work as a continuation of the policy which I said, Atmanirbhar Bharat 2021-22 budget, and now you have Indian Space Policy 2023 which has come out, and that is going to, it seeks to institutionalize the private sector participation in space sector. The establishment of InSpace, which is the Indian National Space Promotion and Authorization Center, is also facilitating the usage of ISRO by private entities. So with all these, government is also spending considerable amount to reskill nearly 4,000 technicians, technical and scientific assistants of ISRO, so that they can improve upon their skills. So I finally close with again one observation, that Indian scientists are not just being here, Indian scientists are not just being in ISRO, Indian scientists are contributing to space programs all over the world. However, how can we ever forget Kalpana Chawla, her contribution?
in the 1997 shuttle, the first woman of Indian origin to be in space. I would also now recall in January 2023, A.C. Charania has become NASA's new chief technologist, serving as principal advisor to Administrator Bill Nelson. Similarly, March 2023, we heard of Sri Amit Kshatriya, who's become the first head of NASA's newly established Moon to Mars program. So, Indians in space, not just in ISRO, but all over the world. Thank you very much for giving me this opportunity. Two quick observations. Shri Johar Sarkar, who reflected as you indicated, has been a bureaucrat for 4 decades. And we have been liberal with time. As finance minister, please be liberal with finances. Everyone agrees on that. Dr. Prasanta Nanda. Thank you, Chairman, sir. Chandrayaan 3 rightly deserve this space and time in Parliament of India, and it has got in Lok Sabha and in Rajya Sabha also. Sir, all that you are seeing that the gallery was full, or the people everywhere in this country must be seeing this academic discussion of our Rajya Sabha regarding Chandrayaan 3 to listen about the total story of Chandrayaan 3 from 1962 till today. And in that deliberation, they must have been happy by listening to Srimati Nirmala Sitharaman ji and Jairam Ramesh ji and also other people. लेकिन इस बातचीत में, ये टोटल डिबेट में कौन किसी की नानी को याद कराने चाहते थे हमको नहीं मालूम, पर हमें इतना मालूम है कि मुझे अपनी माँ याद आ गई। 74 साल पहले जब मैं खाना नहीं खाता था, मेरी माँ मुझे छत के ऊपर लेके जाती थी और कहती थी, बेटा मामा को देख ले, खा ले, नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएगा, वो घर नहीं बुलाएगा। मैं खाना खा देता था, लेकिन घर नहीं बुलाते थे मामा, कभी घर नहीं बुलाया। और इसी दुख को दूर करने के लिए जो 62 साल से शुरुआत हुई, वो 23 अगस्त 2023 को हो गया। और ऐसा हुआ, जो निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी कि 100 वीमेन साइंटिस्ट, मैडम वो 100 साइंटिस्ट नहीं थे, 100 माँ थे। 100 माँ थे जो लाखों करोड़ों माँ को उनका वादा पूरा करा रहे थे, और उनका वादा पूरा हो गया। अब यहां हमको सिर्फ बोलना है उसी के बारे में, उन्हीं के बारे में। कौन किधर है, कौन पावर में है, कौन पावर में नहीं है, इसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। भाई देखिए, सीधी सारी बात है, एक रिले रेस चल रही है 4x400 मीटर्स। अब 4 आदमी भाग रहे हैं, जो फास्ट होता है, लेकिन ओलंपिक में मेडल मिलता है तो चारों को लेकर खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं सबको मेडल मिलेगा। तो 62 से लेकर अब तक जितने साइंटिस्ट, जितने प्राइम मिनिस्टर इस पे लगे थे, मेरे हिसाब से सबको मैं एक मेडल चाहिए। दे डिजर्व इट। और ये भी मैं बोलना चाहता हूं, आज अगर इसरो में जितने हैं, उसमें 16,000 फीमेल्स हैं, काम कर रहे हैं, वहां हमारे हैं। और इसीलिए इसी सोच में आकर
हम सोच रहे हैं क्यों ना लोकसभा में और क्यों ना राज्यसभा में वो भी उतनी संख्यक हमारे लेडीज आ जाएं। हमको चाहिए। अब अगर डबल इंजन की बात करते हो तो डबल इंजन यही होगा कि एक इंजन पुरुष है, दूसरा इंजन स्त्री है। अगर ये दो इंजन काम करेंगे तो ये और बहुत बढ़िया होगा। सर, मेरा तो ज्यादा टाइम नहीं है, बोलने को बहुत दिल करता था और सुनने को भी ज्यादा दिल करता था, इसीलिए बैठा हूं मैं। बोलने का यह है कि देखिए, हमको आज यह है कि देखो, इतना पैसा तभी मिलता था और आज हम ज्यादा पैसा देते हैं। भाई, मेरे पिताजी 30 रुपया में उनको तनख्वाह मिलता था, हम आराम से खाते पीते थे और उतना आराम करने के लिए अपने आज को 3 लाख रुपया लगेगा। तो डिवैल्यूएशन हुआ है पैसों का। तो पैसों का बात ना करें, दिल का बात करें और अक्ल का बात करें। अक्ल का बात करें तो 60 नहीं, 6000 साल पहले जो इंडियन वनवास करते थे, जो साधु थे, जो संत थे, वो भी साइंटिस्ट थे और आज भी जो है वो भी साइंटिस्ट थे। सब साइंटिस्ट थे। कोई किसी को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, उनको एकाग्रता की जरूरत है और जितनी एकाग्रता देश उनको चाहता है तो उनसे उन्होंने हर काल दिया है। हमको वेद दिया है, उन्होंने उपनिषद दिया है, गीता दिया है और आज चंद्रयान भी दे दिया। वही साइंटिस्ट लोग हैं, उनका नाम बदल गया है लेकिन उन्होंने दिया है। और इसमें मेरा इतना कहना है कि हम आए हैं ओडिशा से। सबको लगता होगा ये छोटा एक है छोटा, इतना बड़ा नहीं है, पर है। हमारा भी इसमें कोई हम साझेदारी है और हमारा भी सुन लीजिए कहानी कि हम भी इस यात्रा में कैसे जा रहे हैं। सर, दिस ओडिशा के बारे में जब बोल रहा हूं, 1984 में ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ORSAC, the apex body of the state of Odisha for space technology applications, was established 1984, sir. Along with space tech, ORSAC is involved in IT projects like remote sensing, GIS and GPS based projects, geographic information system and global positioning system. The organization also runs GramSat and EduSat. Then I am telling you, in 2017, Odisha government formally named the outer Wheeler Island in Bhadrak district of Odisha as APJ Abdul Kalam Island. उसका नाम दिया है APJ Abdul Kalam Island as a tribute to the former president on his second death anniversary. Former Chief Minister Biju Patnaik, sir, एक मिनट. Former Chief Minister Biju Patnaik had allotted the historic Wheeler Island to the Ministry of Defence on the request of Kalam in 1993. Kalam had once described the Wheeler Island as his theatre of action. He said, "It is my theatre of action." Kalam also played a key role in ensuring that the island, a nesting ground for the endangered olive ridley tortoise, remained safe by changing the illumination structure. और लास्ट में इतना है, हम उड़ीसा के लोग इतना चाहते हैं कि ये हम कर सकते हैं। क्या है ना, if everything was well, a made in Odisha miniature satellite CubeSat will soon support the state in managing natural calamities like cyclone and enhancing cyber security. जिस साइक्लोन से हम लड़ रहे हैं, साल में 10 बार लड़ रहे हैं, तो साइक्लोन को उसके लिए जानकारी के लिए वो जो सैटेलाइट होगी ये ओडिशा की अपनी होगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम भी ये जो यात्री है, ये जो सफलता है और ये जो गोल्ड मेडल सब लोग लेने के लिए खड़े हैं, उसमें हमारा भी शामिल है, ओडिशा का भी। हमने भी कुछ प्रतिदान दिया है, ओडिशा के औरतों ने भी कुछ प्रतिदान दिया है। और इसी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है, फिर भी इतना याद रखिए, ये एक नेशनल गर्व है। दिस इज ए प्राउड ऑफ आवर नेशन। दिस इज the day of the scientist
who Please have conclude. made it so. Please conclude. I am concluding. This is a concluding chapter again. अभी Now I have to call the next speaker. अभी मैं ये बोलता हूँ अभी ये हो गया तय कि आज हम गर्व से छाती उठा के बोल सकते हैं कि कितने देश है जिसमें हमको बोल सकते हैं कि इंडिया इज नॉट Thank you, Prashantananda ji. comparable to other scientists. Thank you. We can and we say that हमारा जो अगले जो है गगनायन है या हमारा जो आदित्य है वो भी आएगी और वो भी करके दिखाएगी इंडिया क्या चीज है उस दिन के लिए इंतजार करें जय जगन्नाथ Next speaker, Dr. M. Thambidurai. Thank you, Vice Chairman, sir. On behalf of ADMK party, I like to participate in the discussion on India's glorious space journey marked by successful soft landing of Chandrayaan-3. Question, Chairman, sir. From morning onwards, we listened from the most of the speakers. First initiated by the Industry and Commerce Minister. It's the Industry and Commerce Minister. He started. Then afterwards, Space Minister also intervened in that. Then afterwards, Finance Minister. She also intervened in that. Now we are vacant of that. We are going to participate in that. I am thankful for that. But Chandrayaan journey, that first Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, all are described by the various people. It is a success for Indian scientists. We have to remember all the scientists like Sir C.V. Raman, Nobel laureate, is a man who gave these kind of physics, that is the science. That is the base for our things, for all development that we have to think about Dr. Sir C.V. Raman, Nobel laureate. Next we know Vikram Sarabhai, Homi Bhabhai, our Abdul Kalam. Abdul Kalam studied in MIT in Chennai, you know very well. That is famous institute where our Chennai is the base for education also. In that place he studied. And also, as others said, there are so many people contributed the development of this space research. 100 women scientists also participated. And also, so many prime ministers done so many efforts. But our Prime Minister, Narendra Modi, in his period is successful over. That is why when many of the people appreciated our Modi ji, then during and also it is a success in his period, Chandrayaan 3 safely landed and started research and gave so many information throughout the country, through the world. That is why we are appreciating. And also our minister, space minister, then go on explaining about education, also very important thing for the success of thing in India. Before education, super beliefs are there. Super beliefs, everything explained in the health and even material, whatever things have superstitions are there. But all these are removed. Your time is over, sir. So what is time is over? Can't understand. Just say a few minutes, please. This is not because we are say 4 members or party, single members all spoke. But now time is now ending time. Sir, and also I am telling you, come to but this is embarrassing to us. I was senior presiding officer of Lok Sabha, 5 times Lok Sabha member. When I am speaking that, I know the sense of the house. Then when I am saying something, because this is a successful story that I explaining means, when starting itself he is over means, how can I conclude that? Please listen to me, sir. Then whatever I say, okay, I want to restrict that. The success of education, what he said, at that point, only point I want to say, education means science education, also very important. Especially in Tamil Nadu, Dravidian movement is the root cause for the giving good education for our country. That is why even in the name
in Chennai, Gindi Research Center, Periyar Kolarangam. That is Periyar Space Emporium as established. What I am telling is where the space things, whatever developed in the country, whatever journey, that is successful technical. And also technical education, if you take, for example, MGR, our founder leader of the ADMK party, who started many education institutions, especially technical education, IITs and ITIs, so many polytechnics. That kind of science education is given. That is why so many scientists you have to create, especially the Tamil Nadu people. I want to mention because the name of the people we have said they are for Veeramuthu. Has come. Veeramuthu, well said. Our minister said. Then Vanitha Mutaya. Then Sir, you have already taken 2 minutes extra. So many people are educated means because of good education given by Tamil Nadu. Thank you. They all contributed the space journey. And also, once again, I thank for our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. In his period, he successfully has taken place. And also, I thank other Prime Ministers also, others also, and scientists, Indian scientists who contributed so much for that. I thank you very much. I thank you. Sir, at the very outset, let me start by congratulating heartily our great scientists who successfully executed the Chandrayaan-3 mission, making India the first nation to land on the South Pole, near the South Pole of the Moon. Sir, our scientists worked hard for the success of Chandrayaan, and just at the crucial moment when the Chandrayaan was about to land, the entire nation was deprived of the chance of seeing the landing, or our scientists congratulating each other, because the official TV feed got cut to a video showing the PM waving the national flag. It's shameful, sir. The camera was turned on the PM while the nation waited with bated breath to see the actual landing of the video and the celebration of our scientists. Sir, the scientists, I reiterate, were the real heroes, because despite the Department of Space having a budgetary cut of more than 8% this year, compared to the last fiscal of 22-23, which in turn had an expenditure cut of 32% for the space science part, notwithstanding the fact that Chandrayaan-3 and Aditya L1, these missions were included in this. Sir, I would also, that's why I say that this is the very reason why I laud our heroes, our scientists. Minister, and Bengal has played a part in it. As you know, 31. One second. No, I didn't want to interrupt him because he's speaking in a good flow. Sir, I'm not I just wanted to put second. the record straight. When the PM was shown on the screen, the other part of the screen shows the landing. So it is not. No. The whole nation is a witness to. The whole nation is witness to that. The whole nation is witness to that. You can get it replayed. Yes, the Sir, video is there. Why? It is for all to Just see. because. What is the truth? What is the truth? Just Let because the nation PM, decide. just Sir, because sir, PM's face was there does not mean that the landing was not shown. Honorable Minister, the video is there. Let the nation decide. Yes. Let it The whole nation has been The video is there. It is in public domain. The video is there. You are stating half truth. Anyway, PM's face Chairman, was sir, there, Vice but the Chairman, sir, landing was my also time is being shown. eaten into. Please. It was simultaneously being shown. It was being simultaneously shown. Sir, I am Please not, understand that. sir, I am not yielding. I seek your You're protection, not sir. understanding. Sir, how is it? Sir, Chairman, Vice Chairman, sir, I seek your protection. I am not yielding. I am Please saying let me have my chance to speak. even before PM's face came, our faces were also there. Vice Chairman, sir, Vice Chairman, sir, my time is being eaten into. They were showing the He'll be team. given time. No, The team ISRO was there, the mission team was there, we were watching from one location, we were there, and that slot went to PM. Sir, I am not yielded. But Please the give me landing my was chance to continuing speak. simultaneously. Mr. Biswas, continue. Sir, much of my time has been eaten into. You please give me the due time. Firstly, I'll say it is on public domain and it is for all to see and decide. Okay? Sir, I would like to say, since I laud the scientists, 31 of them, we proudly say, have come from Bengal as part of the mission. And as you know, Anuj Nandi, he was from Islampur of West Bengal.
he also played a very crucial role in this mission, working as the chief of designer of the cameras attached to the primary body of Chandrayaan 3. Sir, also, I would like to say that after meeting the ISRO scientists in Bengaluru, the Honorable Prime Minister landed in Delhi and made a bizarre statement. He said, use of space technology for delivery of services. This statement has not been clarified as yet. And then we see the Governor of Bengal wrote to ISRO asking for help of space technology to curb ragging of students in colleges. Sir, it is most astonishing to see and agonizing also the achievements of our scientists being mocked in such illogical statements which seeks to take away their success and seems to undermine them. Sir, further, I would like to say that during the 2019 Lok Sabha elections, our Honorable Prime Minister was suddenly seen addressing the nation on Mission Shakti. The sole purpose was to take credit for success of our scientists for political and electoral gains. Again, sir, from speech of the leader of the House today, it seems that the government doesn't want to focus of today's discussion to be celebrated as one of our scientists and our space program, but of a personal credit festival for the PM and only the PM. Let us move past the self-congratulatory and chest-thumping postures and stand up as a nation to the dual heroes, our scientists. Sir, all I have to say while I conclude is that while we have our eyes on space, let our feet touch the ground reality, discussing nation-related harsh realities of price hikes, unemployment, MSP for farmers, Manipur, recent CAG reports, etc., which seriously concern the people at large. Let there be a celebration, but also along with introspection, if as a nation we want to move forward with much more such achievements and phenomenal successes. Thank you, sir. Shri Sanjay Raut ji. Thank you very much, sir. Sir, we are discussing on India's glorious space journey. ये जो जर्नी है बहुत ही गौरवशाली है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, प्रधानमंत्री भी आए और चले गए, लेकिन इंडिया की ये स्पेस जर्नी निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। ये पंडित नेहरू वर्सेस नरेंद्र मोदी ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप वहां से मोदी मोदी करेंगे, हम नेहरू नेहरू करेंगे। ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। 2014 से पहले भी इस देश में बहुत बड़ा काम हुआ है और उसके बदौलत आज चंद्रयान ऊपर गया है। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है, प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है। कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। लेकिन ये भी विज्ञान है, मैं नहीं मानता ये विज्ञान नहीं है, ये भी साइंस है। गटार से भी हम गैस निकाल सकते हैं, ये भी साइंस है। लेकिन पंडित नेहरू की सोच ऊपर थी। पंडित नेहरू ने इसरो बनाया। पंडित नेहरू ने जिस तरह से ज्ञान, विज्ञान और तंत्रज्ञान की नींव रखी और आज हम 70 साल में यहां तक पहुंच गए हैं। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी अद्भुत है सर। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा चंद्रयान 1 से शुरू हुई थी, चंद्रयान 2 में भी जारी रही और चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा है। ये हमारे 60-70 साल के टीम वर्क का नतीजा है। ये जो हमारा ऐतिहासिक पुराना संसद भवन है, उसमें जो आखिरी संयुक्त बैठक हुई
उसमें प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और सांसदों के साथ पैदल चलकर यहां तक आ गए, नए संसद भवन में आ गए। 1947 से हमारी सफर, इस देश की सफर इसी तरह से हो रही है। पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, कुछ नहीं बनता था, और आज हम हमारा चंद्रयान ऊपर भेज रहे हैं। सर, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। सर, मैंने कहा कि यह गौरवशाली यात्रा है। आज इसरो भारत का गौरव है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। विक्रम साराभाई जी के बारे में जयराम रमेश जी ने कहा, पूरी कहानी सुनाई। विक्रम साराभाई इसरो के उस वक्त टीम लीडर थे और उनकी टीम भी बहुत छोटी थी। बहुत गिने चुने वैज्ञानिक उनके पास थे, पैसों की तंगी थी, लेकिन साल भर में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया और उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। वो ऐतिहासिक तस्वीर आज भी हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देती है। और आज 6 दशक के बाद हम चांद पर, मंगल पर और क्या गगनयान, ये सब जो देन है सर, ये हमारी देश के 60-70 साल में हमारे पंडित नेहरू से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री मोदी जी। सर प्लीज, मैं सबका नाम लेना चाहता हूं। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल कहा मजबूत भारत बनाना है। बड़े सोच से ही भव्य मजबूत भारत का निर्माण होगा। सोच बड़ी होगी तो बड़े काम हो जाते हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी के सिवा ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमने कोरोना काल में क्या देखा? पापड़ बेचो, थालियां बजाओ, तालियां बजाओ। दिस इज नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे इस देश संजय राउत जी प्लीज कंक्लूड। संजय राउत जी वैक्सीन बनाया। इस देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया और वैक्सीन बनने के बाद संजय राउत जी प्लीज कंक्लूड। प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपना फोटो लगाकर प्रचार किया। थैंक यू संजय राउत जी, प्लीज कंक्लूड। हमको आदर करना चाहिए हमारे साइंटिस्ट का, हमारे विज्ञान का, हमारे टेक्नोलॉजी का। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर। सर, ये देश बहुत बड़ा है। प्लीज कंक्लूड। यू हैव टेकन सर ऑलमोस्ट 3 मिनट्स। साइंस टेक्नोलॉजी ये राजनीति करने का विषय नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने इस विषय में भी राजनीति लाई। हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तेलंगाना और आंध्र का झगड़ा लगा दिया। ये कब तक चलेगा सर? डॉक्टर अनिल जैन। सर, आज के इस मौके धन्यवाद उपसभापति महोदय। लोकतंत्र के इस ऐतिहासिक because they viewed India as a poor country, and the revolutionary answer that our freedom fighters gave was, we are going to transfer power to the people of India. So we became a country that from its inception gave the vote to all our women.
And this was a revolutionary thing at the time. We also gave the vote to every single community. And the vote was a mechanism of transfer of power. It was designed to further transfer power to the people of India. And if you look at the journey from independence, it's been that journey. It's been a constant transfer of power, more and more and more power to the people of India, on one side. And on the other side, the counter idea that take away power from the people of India. This is the fight that is going on. And in fact, in many ways, it is the fight that is taking place today. Huge step forward in the transfer of power to the women of India was Panchayati Raj, where they were given reservation and they were allowed to enter the political system at scale. And this is another step. It's a big step, it is not a small step. And I'm sure everybody in this room, the treasury benches, the opposition, everybody agrees that this is a very important step for the women of our country. They fought for independence. They are as capable as any man, in many ways more capable, and should be given as much space as they possibly can be given. There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. There are also two things that seem strange to me. One is the idea that you require a new census to implement this bill. And the second is that you require a new delimitation to implement this bill. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. And so I wonder if this is not designed to push the ball forward. To push the ball forward 7, 8, 9 years, and then let this thing play out the way it does. I know my friends tend to like to take the attention of people away from other issues. You know, there is of course the Adani issue, which is they always want to take the attention away. But there is another, I would like to say that. One of the things that, this is quite a nice building, nice peacocks, nice peacock feathers on the ground, nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. So one of the things that the government likes to distract from, of course, is Mr. Adani. And there is another thing
that the government likes to distract everybody from. And that thing is called the caste census. For some reason, and I don't quite understand what this reason is, the moment the opposition raises the issue of caste census, the BJP tries to create a new distraction, a new sudden, event, so that the OBC community and the people of India look the other way. In my research for this speech, I took a look at the different institutions that define how our country moves forward. There are many. There is the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas. There is the bureaucracy. There is the press. And there's the judiciary. And I looked with an eye to understand what is the participation of the OBC community in these institutions. मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया. जो सेंट्रल the central, don't worry, don't be scared, we are discussing, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत. तो मैंने, I checked, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? The people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं. मैंने ये सवाल पूछा. मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं. और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत. और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं. मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं. और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं. मतलब ये जो है आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते?
ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ हैं, आप ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के खिलाफ हैं आप, ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। ये सी दे आर नॉट शोइंग इट ऑन टीवी। ये जो है, हाँ, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है। डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। सर, ये जो डिस्कशन है, सर, स्पीकर सर, this discussion, Speaker sir, this discussion is about the transfer of power to the people of India. The women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि युग बदलने वाले विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान को संशोधित करने वाले 128वें संविधान संशोधन के समर्थन में बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिसको जाना है डरिए मत, डरिए मत। अरे भाई डरो मत। नो, जिसको जाना है जाने दिया से क्यों? प्लीज, कोई भी सदन में रुक सकता है, जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज, नो।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है, उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 330 ए जो लोकसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332 ए जो राज्यों की विधानसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी 1/3 सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश इसी बिल से होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण
राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सिद्धांत के लिए किसी व्यक्ति या संस्था इसका आकलन करना है कि सिद्धांत के प्रति मान्यता कितनी दृढ़ है, तो कोई एक घटना, कोई एक कदम से नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव थे गुजरात प्रांत के, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की वडोदरा कार्यकारिणी हुई थी। उस ऐतिहासिक कार्यकारिणी में मोदी जी के रोल के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पदों में 1/3 रिजर्वेशन माताओं के लिए किया गया, और ऐसा करने वाले मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी सबसे पहली पार्टी है और मेरी पार्टी सबसे अंतिम पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, ढेर सारे लोगों को मुख्यमंत्री रहते हुए ढेर सारी भेंटें मिलती हैं। ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इसको तोशाखाना में आरक्षित रखवा देते हैं। मोदी जी ने उस वक्त निर्णय किया था और सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जितनी भी भेंट आएगी उसका ऑक्शन होगा और वो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम रहते हुए भी उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना। 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनाव हुआ, और 30 साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का मैंडेट दिया। और जब सरकार बनाने का समय आया, तब मोदी जी का स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, और इस्तीफा देने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो मुख्यमंत्री पद से जब मोदी जी ने इस्तीफा दिया, तब इनके बैंक अकाउंट में माननीय अध्यक्ष जी, भाई उनको जवाब न दो, इनके बैंक अकाउंट में जितना भी मुख्यमंत्री की तनख्वाह से और जितना भी पैसा बचा था, वो सारा का सारा गुजरात सचिवालय की वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। माननीय अध्यक्ष, इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था। यही मोदी जी थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में दिया, और गुजरात में उनके प्रयासों से जन जागृति के माध्यम से कोई कानून के बगैर लिंग अनुपात के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर लाखों बेटियों को पृथ्वी पर आने का अधिकार इस नरेंद्र मोदी जी ने। धूम धपकी धूप में मई महीने में पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार 5 दिनों तक गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए गांव-गांव में जाती थी। कोई कस्बा ऐसा नहीं होता था जहां पर सरकार के पदाधिकारी नहीं जाते थे। पंच, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, तहसील पंचायत के सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी लोग जाते थे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके एनरोलमेंट के लिए और ड्रॉप आउट रेशियो के कम करने के लिए, उनको फिर से पुनः दाखला दिलाने के लिए गांवों में निवास करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका परिणाम क्या था? एक और तो लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आया, और दूसरी बार
दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लेगेसी छोड़कर गई थी गुजरात में, उसमें प्राइमरी एजुकेशन में 37% ड्रॉप आउट रेशियो था और मोदी जी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के आए तब वो 30% ड्रॉप आउट रेशियो घटकर 0.70%। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, ये कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था, पहले रोक लिया गया, ये सब बातें तो मैं बाद में बताता हूं, परंतु ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, ये कोई ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, कई ऐसी चीजें हैं जो हुई है। आज मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जन धन योजना चालू करी, बैंक अकाउंट खोलने का अभियान चालू किया, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70% बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए। माननीय अध्यक्ष जी, माताओं के नाम से आज महिला सशक्तिकरण हुआ है। सारी योजनाओं का जो पैसा जा रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई, आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? माननीय सदस्य प्लीज, मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं? माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वो महिला के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। और जब एक घर में एक शौचालय नहीं होता है तो मान्यवर सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। मान्यवर, शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। 11 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी ने पहले 5 साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख सदन की सहमति हो तो इस विधेयक के प्रस्ताव को पारित होने तक और चर्चा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने, किसका एम्पावरमेंट हुआ? ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनने से माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान हुआ, उनका सशक्तिकरण हुआ। 10 करोड़ परिवार धुएं से युक्त थे। कंडे और टहनियां जलाकर आंख का नेत्रमणि खत्म हो जाता था, फेफड़े फाइब्रोसिस से भर जाते थे। 10 करोड़ घरों में एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देकर माताओं का सशक्तिकरण करने का काम किया। 3 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर दिया और वो घर माता के नाम से करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, 12 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं था। अब जो समाज के अंदर रहते हैं, जो जमीन को जानते हैं,
उनको मालूम है कि घर में पीने का पानी नहीं है तो पीड़ा सबसे ज्यादा किसको होती है, किसको ज्यादा तकलीफ होती है। घर में पीने का पानी नहीं है तो घर की माता को ही तकलीफ होती है। 12 करोड़ परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी। हर घर के अंदर 80 करोड़ लोगों को हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। जब चूल्हा नहीं जलता है ना, मान्यवर, बच्चे भूखे रहते हैं, तो सबसे बड़ा चूल्हा तो नहीं जलता है मगर माँ का दिल जलता है। मान्यवर, माँ का दिल जलता है। ये भूखे परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले। मान्यवर, 3 करोड़ महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत फायदा पहुंचाया। मान्यवर, लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, पेड मैटरनिटी लीव देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। और एम्पावरमेंट क्या होता है माननीय अध्यक्ष जी? आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले पायलट में महिलाओं की संख्या 5% है, भारत में 15% है और ये 10 साल में बढ़ेगी। इसको एम्पावरमेंट। मान्यवर, हम ये जो बिल लेकर आए हैं, मान्यवर, ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा है। मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये सम्मान करने के लिए एक आरक्षण है। मान्यवर, इस देश में जो भी रहता है जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी है, वो कोई भी महिला को कमजोर बनाने की गलती नहीं कर सकता। मान्यवर, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी 3 स्वरूप है देवियों के। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, सरस्वती विद्या का स्वरूप है और लक्ष्मी ऐश्वर्य का, वैभव का स्वरूप है। ये तीनों स्वरूपों में हमारे पुरखों ने, हमारी संस्कृति ने मां की ही कल्पना की है, कहीं और किसी की कल्पना नहीं। मान्यवर, मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न क्या है? जड़ें भारत से नहीं जुड़ी है। मैं कहना नहीं चाहता जड़ें कहां जुड़ी है, जड़ें अगर भारत से जुड़ी है तो तकलीफ नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हजारों वर्ष से हमारे सांस्कृतिक प्रवाह और हजारों वर्ष के हमारे देश के इतिहास के अंदर कई सारी ज्ञान की नई नई विधाएं और ज्ञान के नए नए आयाम हुए हैं। कहीं वेदों की ऋचा है, कहीं उपनिषदों के मंत्र हैं, कभी पुराणों के श्लोक पढ़े हैं। ऋग्वेद के कुल 422 मंत्रों में महिलाओं का महिमा मंडन करने का काम हमारे ऋषियों ने किया है। वेदों की रचना में योगदान देने वालों में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, विश्वम्भरा, श्रद्धा, संध्या, देवयानी, सची, अदिति, लोपामुद्रा, ये सारी माताओं ने वेदों को संवेदना से परिपूर्ण कर कर समग्र चराचर की चिंता करने वाली बनाए। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है अदिति को इंद्र की मां कहा जाता है। मान्यवर, अदिति चारों वेदों में पारंगत थी और चारों वेदों को पूर्ण करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मान्यवर, शासन की बात करें
तो 10वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी दिद्दा, कातकीय वंश की रुद्रमा 13वीं शताब्दी में, रानी दुर्गावती, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जिजाऊ, रानी चेन्नम्मा, महारानी अब्बका और महारानी लक्ष्मीबाई को इस देश का समाज और इतिहास कभी भूल नहीं सकता। मान्यवर, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, वड़वा, प्रतिथेयी, अरुंधति और सावित्रीबाई फुले ने इस समाज को संपूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमें बिल जो लेकर आए हैं मान्यवर, ये भाव से लेकर नहीं आए। एक प्रकार की समाज व्यवस्था बनी है और समाज व्यवस्था में एक क्षति है। एक क्षति को सुधारने के लिए, महिलाओं को प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए 50% आरक्षण लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। मान्यवर, जहां तक ढेर सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातें की है मान्यवर, मैं आज यहाँ कुछ चीजों का जवाब भी जरूर देना चाहूंगा। मैं इससे पहले स्पष्ट कर देता हूं, कोई ये जवाब को अपने दिल से न लगा ले। मैं किसी भी दल के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। बहुत मौके आएंगे जहां राजनीतिक उत्तर देने की जरूरत होगी, दमखम के साथ देंगे, डट कर देंगे। परंतु एक ऐसा मौका है जिसमें ये सदन ने समग्र देश को ही नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से समग्र विश्व को ये संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी ने जिसकी कल्पना करी, एक वुमन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एक मत। मान्यवर, मगर कुछ चीजें यहां कही गई है, इसलिए मेरा बहुत जरूरी है कि इसकी स्पष्टता कर दी जाए। मान्यवर, ये जो प्रयास है, ये वो 5वां प्रयास है। पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में 2 बार अटल जी ने, 4 बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मंशा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही ना पाए? मान्यवर, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले इस संविधान संशोधन विधेयक 81वें संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 में आया, देवगौड़ा जी लाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, इसका पूरा यश कांग्रेस पार्टी में के अकाउंट में डालना है तो डाल दीजिए, आप भी वोट दे दीजिए, सहमति दे दीजिए, अपने आप आपको वोट मिल जाएगा। परंतु मैं जो स्थिति है, जो सच्चाई है, वो देश की करोड़ों माताओं बहनों को बताना चाहता हूं। ये विधेयक को सबसे पहली बार लेकर आए एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री जी थे, तब ये सरकार लेकर आई। मान्यवर, उस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठा करती थी। देवगौड़ा जी की नहीं, और उनके ही कारण गिर गई थी, सरकार में नहीं थे, सरकार में नहीं थे। अरे बैठो यार। मान्यवर, विधेयक सदन में रखने के बाद विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति को दे दिया गया और संयुक्त समिति ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु दुर्भाग्य से विधेयक कभी सदन तक पहुंच नहीं पाया, आया ही नहीं। मालूम क्या हुआ मालूम नहीं। और जब 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया तो अनुच्छेद 107 के तहत इस विधेयक को लैप्स माना गया और विधेयक वही चला गया। मान्यवर, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने। 14 दिसंबर 1998 में 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया।
और ये विधेयक 12वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि इसको पेश ही नहीं करने दिया। कुछ दृश्य हुए थे इस सदन में, मैं बोलना नहीं चाहता। अडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिए गए। नहीं, वो ठीक है भैया। नहीं, अभी भी कर रहे हो ना आप, अभी भी कर रहे हो मान्यवर। और 12वीं लोकसभा के साथ अनुच्छेद 107 के तहत वो विलोपित हो गया अभी। फिर 13वीं लोकसभा में अटल जी ही प्रधानमंत्री थे और हम फिर से बिल लेकर आए और उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। अब किसने नहीं की, किसने नहीं की, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज मैं किसी को दोषारोपण करने के लिए नहीं आया हूं। मगर इस संसद ने, इस सम्मानीय गृह ने कभी न देखे हो इस प्रकार के कुछ दृश्य 13वीं लोकसभा में देखे, जो पुराने अनुभवी सांसद है उन्होंने देखे हैं मान्यवर। और वो भी अनुच्छेद 107 के तहत विलोपित हो गया। इसके बाद में संविधान का 108वां संशोधन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए। मनमोहन सिंह जी संशोधन लेकर आए, वो पहले राज्यसभा में रखा, राज्यसभा में संशोधन पारित हुआ, उसके बाद में लोकसभा में लाने का मौका ही नहीं हुआ और वो विधेयक भी विलोपित हो गया। तो कल जो मैं कहता था अधीर रंजन जी कि विधेयक, आपने कहा कि विधेयक अभी लंबित है, लंबित नहीं है, जिंदा नहीं है, जीवित भी नहीं है। बैठ जाओ, मैं समझा देता हूं। आप बैठ जाइए, मैं समझा देता हूं। मान्यवर, जब लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा जब विघटित हो जाती है तो अनुच्छेद 107 के तहत लंबित विधेयक जितने भी है वो विलोपित हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं रहते। नहीं, कल उन्होंने सवाल किया था कि विधेयक क्यों फिर से लाना पड़ा। हमारा विधेयक पड़ा है, नहीं पड़ा है, इसलिए विधेयक फिर से लाना। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इनको अनुमति नहीं दी आप। मान्यवर, मुझसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, अपने 60 साल का हिसाब नहीं देते हैं। अब कौन समझाए, देश की जनता देख रही है। मान्यवर, ये विधेयक 5 बार आया, 4 बार आया, 4 बार पारित नहीं हो पाया। हर बार इस देश की मातृशक्ति को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष विपक्ष के सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब एकत्रित होकर ये नई शुरुआत को आज सर्वानुमत से संविधान को संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का। मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई राजनीतिक उठापटक या जवाब देना नहीं चाहता, परंतु कई सारे सवाल उठाए गए। हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए कि भाई तुरंत अमल में क्यों नहीं लाते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और 2026 क्यों। मैं सारी चीजों का एक एक कर जवाब देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 330 में है और ये इसी तरह से विधानसभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 332 में है। ये दोनों रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जनजाति को लागू होती है, दोनों को लागू होती है। मान्यवर, अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए, ओबीसी क्यों नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। मैं सारों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी
जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहाँ चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी से। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं मान्यवर। अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान्यवर, अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर। कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है। हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। एक बार शुरुआत करनी चाहिए और एक बार शुरुआत करें, उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन मगर पारित नहीं हुआ मान्यवर। ये कमेटी में रखना ही शुरुआत मानते हैं। इनके जो नारे हैं गरीबी हटाओ जैसे हैं, 50 साल हो जाए मगर गरीबी नहीं हटती। हम ऐसे नहीं है मान्यवर। हम तो जो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है मान्यवर।
इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। मान्यवर, अभी अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना दादा, नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। भैया, मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद के अंदर नेता चुने गए, और कहा गया उनको भाषण करने के लिए, लिखा हुआ भाषण एक साइड पे रह गया। उन्होंने कहा 2014 में मेरी सरकार दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार। और मान्यवर, आज देश के 80 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पानी, दवाई, गैस का सिलेंडर और खाने के लिए अनाज देने के बाद आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, मान्यवर, ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राग आलपते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इसलिए मैं सभी दल के सांसदों को एक विनती करना चाहता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है। कृपया उसका समर्थन कीजिए। 4 बार इस संसद को, देश की माताओं को हमने निराश किया है। इस बार राजनीतिक पक्षापक्षी से ऊपर उठकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब ये विधेयक का समर्थन करें। और यश आपका भी है, हमारा भी है, छोटे से छोटे निर्दलीय सांसद का भी है। ये यश संसद का है, सदन का है। हम सब मिलकर इसको पारित करें, यही मेरा सबसे अनुरोध है।
नो प्लीज। अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अर्जुन मेघवाल साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 नारी शक्ति वंदन जैसा बिल जिस पर आज आपने चर्चा की अनुमति दी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर भी दिया। इस अवसर पर इस चर्चा में करीब 60 माननीय सांसदों ने भाग लिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक 60 माननीय सांसदों ने इसमें भाग लिया और बहुत सकारात्मक सुझाव भी आए। और इन सुझावों के आधार पर जो कुछ विषय रह गए थे उनके द्वारा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे एक विषय अधिकतर चर्चा में आया, दिन भर से आ रहा है कि हमारी रैंकिंग महिला प्रतिनिधित्व में कम है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के डेटा के अनुसार विश्व भर में नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24% है, 24%। अभी भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15%, 15.1% है। इस नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के पश्चात हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर उठकर 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो ही हमारा रैंक भी बढ़ेगी, हमारी रैंक भी सुधरेगी। इसलिए करीब करीब सभी ने इसका समर्थन भी किया है। कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास किया, उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने अधिकतर जवाब दिया। एक दो बिंदुओं का मैं भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये G20 में भी तय हुआ और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच भी है कि वुमेन डेवलपमेंट से हमें वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ तेजी से बढ़ना है और इसी कड़ी का ये बिल है। मैं 3-4 मुद्दे जो और आए हैं, विशेष करके कुछ महिलाओं के नाम इस चर्चा में आए जो मातृशक्ति ने महिला अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। जिन्होंने भी संघर्ष किया उन सब का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन कुछ भारत की महान परंपरा में नारी शक्ति का जो हमेशा से योगदान रहा है उनका भी मैं जिक्र यहां करना चाहता हूं। वैदिक काल में गार्गी, अपाला घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने उस काल में देश और समाज का नेतृत्व प्रदान किया। रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारी शक्तियों ने समय आने पर अपने राज्य का नेतृत्व भी किया और अपने राज्य के शत्रुओं से अपने राज्य की जनता की न सिर्फ रक्षा की बल्कि विकास के भी नए कीर्तिमान गढ़े उन्होंने। ऐसी हमारी नारी शक्ति रही है। सावित्रीबाई फुले का नाम भी आज आया, रमाबाई, रानी गैडेनल्यू, भगिनी निवेदिता, रानी एनी बेसेंट, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली जैसी असंख्य नारी शक्ति ने आज़ादी के महासंग्राम में आगे बढ़कर नेतृत्व किया, अंग्रेजों से लोहा लिया, साथ ही नारी सशक्तिकरण और समाज सुधार के लिए प्राणपण से कार्य किया। मैं जिस राज्य से आता हूं, राजस्थान से, एक पर्यावरण की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई 363 महिला और पुरुष शहीद हो गए लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। ऐसी महिलाओं का भी हमें वंदन आज करने का अवसर है। मैं इस सदन में, इस सर्वोच्च सदन में सुषमा स्वराज जी को भी याद करता हूं। उन्होंने कहा था
कि महिलाओं को आरक्षण दिए बिना, उनके प्रतिनिधित्व के बिना ये विकास की यात्रा अधूरी है। आज हम उनके सपने को साकार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि महिला मां के रूप में होती है, उसे जननी कहा गया है, और करुणा, ममता, दया, त्याग, समर्पण, प्रेम आदि महिला के स्वाभाविक गुण होते हैं। और जब महिलाएं आगे बढ़कर के नेतृत्व करेगी, अर्थात मातृत्व के साथ साथ नेतृत्व भी करेगी, तो इन गुणों के कारण निर्णयों में जो हम डिसीजन लेंगे उसमें संवेदनशीलता आएगी, सहजता आएगी, समाज और राष्ट्र की भलाई के तत्व स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होंगे हमारे कानूनों में। आगे हम 2047 में भारत की आजादी के शताब्दी समारोह का उत्सव मनाएंगे, तब यह दुनिया भारत की विकास यात्रा में महिलाओं के नेतृत्व को महसूस करेगी। इसलिए आज जो आपने कार्य किया है, मुझे लगता है अमृतकाल की बेला में, जिसका प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई बार जिक्र करते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। 2-3 विषय और थोड़े टेक्निकल आए, जैसे डिलिमिटेशन के विषय में। ये डिलिमिटेशन एक्ट संसद ने बनाया, कई बार उसकी संविधान में संशोधन संसद ने किया, 82 में प्रावधान है। तो डिलिमिटेशन जो अधिनियम है, उसके सेक्शन 8 और 9 में ये कहा गया है कि संख्या दे करके निर्धारण होता है, जिसका जिक्र अभी गृह मंत्री जी कर रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये टेक्निकल चीजों में हम जब अगर जाएंगे, तो कई बार आप शायद या तो ये चाहते होंगे कि ये टेक्निकल चीजों में ये बिल फंस जाए। इस बिल को हम फंसना नहीं देंगे अब। हाँ, इस बिल को अब हम फंसना नहीं देंगे, क्योंकि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिबेट में राजेश कुमार धारिया वर्सेस राजस्थान पीएससी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट और महिलाओं के लिए आरक्षण, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि महिलाओं का आरक्षण का विषय हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। आप कहते हो तुरंत दे दो, तुरंत डिलिमिटेशन भी नहीं होगा और तुरंत दे देंगे तो संविधान का अनुरूप नहीं होगा। तो क्या आप चाहते हो कि हम तुरंत दे करके इसको, जब आप तो चूंकि हम तो यहां पास करेंगे, आपके सहयोग से पास होगा, लेकिन आप पीआईएल लगा करके सुप्रीम कोर्ट में भी तो जाओगे, तो आप चाहते हो कि वहां बिल अटक जाए। इसलिए महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व देने वाला ये बिल है। आप सबने सहयोग किया, मैं आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन ये टेक्निकल बातों में अपने को इतना उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सोच समझ करके ही इस बिल के लिए प्रावधान किए हैं। इस बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में SC/ST के लिए आरक्षण है, इसलिए परिसीमन जरूरी है, ये आपको समझना है। इसके अलावा जो विषय और भी कुछ सदस्यों ने रखे, जैसे एक विषय रखा कि डिलिमिटेशन क्या जरूरी है, सीट रीएडजस्टमेंट क्या जरूरी। आर्टिकल 82 में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका जिक्र निशिकांत दुबे जी भी कर रहे थे, कि आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट डिलिमिटेशन का ही पार्ट है। तो आप कैसे तय करोगे ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वो उसको उनका काम है। अगर वैसे ही कर दोगे आप, तो फिर आप पीआईएल में जाओ, कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब हम महिलाओं को इंतजार नहीं करना पड़े, ऐसा पक्का प्रबंध कर रहे हैं, और ये महिला आरक्षण बिल हम लेकर के आए हैं। देखिए, विपक्ष के समय भी, अभी राहुल गांधी जी बोल के गए, ये बिल पास कराने का समय था, लेकिन ये क्यों नहीं लाए। जो मुझे कई बार एक कोटेशन याद आता है, क्योंकि उनके पास ना तो नीति थी, ना नियत थी, और ना नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, और आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। इसलिए यह बिल आ रहा है और अभी पास भी होगा। और इस विषय में जो आपने जो टेक्निकल विषय रखे, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि अमृतकाल का यह समय है। नए संसद भवन में पहला बिल, वो भी नारी शक्ति वंदन का है। सभी दलों ने समर्थन किया। इसमें पॉलिटिकल स्कोर करके आप क्या इसमें करना चाहते हो। हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं। आपने अभी जिक्र किया कि ओबीसी के सेक्रेटरी कितने, मैं भी आईएएस रहा हुआ हूं,
मुझे इसकी जानकारी है, राहुल गांधी जी यहाँ रहे नहीं। अब 92 बैच में जो आया, नहीं यहाँ सदन में नहीं है, सदन में, हाँ सदन में नहीं है अनुराग जी। 92 बैच में जो आईएएस में आया वो सेक्रेटरी बनेगा, तो 92 बैच में राज किसका था? सेक्रेटरी कैसे बनेगा? राज आपका ही था। आप अपने राज को ही कोस रहे हो। आप कभी कहते हो कि SC/ST के लिए आपने काम नहीं किया। अरे मैं बताना चाहता हूं जी, आपने बाबा साहब को 52 में चुनाव हराया, आपने बाबा साहब को 52 में चुनाव हराया, फिर भंडारा से वो उपचुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी आपने हराया, और आप संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहते थे। आपकी ऐसी नीयत है जी। आप ओबीसी समाज के भले की बात कर रहे हो। सारी बातें गृह मंत्री जी ने कह दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेक्रेटरी ऐसे ही बन जाते हैं क्या? और जैसे ठीक कहा गृह मंत्री जी ने, किस नियम क्या है? सेक्रेटरी जो हम पॉलिसी बनाते हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। बोलते हैं आप जो पॉलिसी हम बनाते हैं उसको लागू करने का काम करते हैं सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी सबका समर्थन लो। तो ऐसा करके डिबेट को जो डिबेट किया, ये ठीक नहीं था। मैं अगला एक बिंदु कहना चाहता हूं। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमें वोटिंग राइट दिया जिससे हम सशक्त हुए। बात एकदम ठीक है। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो कुछ ऐसे कह रहे थे कुछ पढ़े लिखों को वोट दो, कुछ कह रहे थे कि एक बड़े साहूकार को वोट दे दो, कुछ गिन लो, ऐसी स्थिति आ रही थी। उस समय बाबा साहब खड़े हुए, BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा हम एशिया और अफ्रीका के देशों को नेतृत्व देने जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा निर्णय करें। अडल्ट फ्रेंचाइज का निर्णय अगर किसी ने किया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया, और उनके जिद के कारण हुआ। उनको भी आपने हराया। जब इतना बड़ा काम किया, संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान की रचना करी, संविधान के शिल्पकार थे, उनको भी आपने हराना के काम किया। फिर यहाँ पॉलिटिकल स्कोर आप खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात कही गई। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं और प्रतिष्ठा। हाँ, क्यों बात करते हैं सदन के अंदर? सदन को गुमराह करना चाहते हैं आप। एक सेकंड, ये फैक्चुअली करेक्ट है। जैसे राहुल गांधी को बीजेपी ने हराया, ये फैक्चुअली करेक्ट है। बाबा साहब के सामने जीत कराने वाले प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे। तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या है? कुछ नहीं हुआ। तो काहे को इतना आप चिंता कर रहे हो? भारत रत्न भी नहीं दिया और आप सेंट्रल हॉल में तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। अरे सेंट्रल हॉल में अध्यक्ष जी तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। मेरे पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तेल चित्र लगने के लिए सेंट्रल हॉल में जगह नहीं है। ऐसा इन्होंने काम किया। और भारत रत्न तो दिया ही नहीं। बाद में जब VP सिंह के समय सरकार आई, जब अटल जी अडवाणी जी बाहर से समर्थन कर रहे थे, उस सरकार ने दिया भारत रत्न भी नहीं दिया बाबा साहब को। तेल चित्र भी लगने के नहीं दिया। दो बार चुनाव में हराया। बहुत से सदस्यों ने कहा था, सर, मैंने एक किताब में बहुत स्पष्ट पढ़ा है, बहुत से सदस्यों ने कहा 52 में पंडित नेहरू जी को कि डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी हैं, इनके सामने उम्मीदवार मत खड़ा करो। तो नेहरू जी ने कहा कि ये हमारा विरोधी है, ये दो ही पार्टियों की आलोचना करता है, BR अम्बेडकर, एक कांग्रेस की, एक कम्युनिस्ट पार्टी की, इसलिए हम तो इसको हराएंगे चुनाव लड़ करके। और ये तो फैक्ट है, इट्स द हिस्टोरिकल फैक्ट। इसमें क्या है? इसमें क्या नई चीज है? इसमें कोई नई चीज नहीं है जी। मैं ये
चाहता हूं, ये मैं करेक्ट बोल रहा हूं, एकदम करेक्ट बोल रहा हूं सर, मैं एकदम करेक्ट बोल रहा हूं। हमारे शांतनु ठाकुर साहब यहाँ एक एमओएस है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। आप तो कैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, किन लोगों ने वोट दिया, पूरा रिकॉर्ड है उनके पास। और आप देखिए, मैं विषय पे आता हूं, मैं एक विषय पे आता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य ने ये राइट टू वोट का विषय तो कई सदस्यों ने उठाया, इसलिए मुझे कहना पड़ा। राइट टू वोट का विषय तो कई सदस्यों ने उठाया, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि राइट टू वोट का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दिलाया। उन्होंने कहा पुरुष और महिला सबको एक साथ वोटिंग राइट मिलना चाहिए। वो वोटिंग राइट मिला, और उन्होंने ये भी कहा संविधान सभा में कि आप मताधिकार दे करके तो देखो। तो कई लोगों ने विरोध किया, साहब कुछ लोग अनपढ़ हैं, महिलाएं तो ज्यादा अनपढ़ है। उन्होंने कहा हमारी महिलाएं अनपढ़ हो सकती है, लेकिन जब मताधिकार का दिन आएगा तो वो होली और दिवाली की तरह ये दिन मनाएगी। आज जब मैं जाकर के देखता हूं पंचायत राज का चुनाव, आज मैं जाकर के देखता हूं नगर पालिका का चुनाव, आज मैं जाकर के देखता हूं विधानसभा का चुनाव, आज मैं जब जाकर के देखता हूं लोकसभा का चुनाव, महिलाएं जब सज धज करके आती है, और आपने भी कोटा में देखा होगा, वो सेलिब्रेट करती है साहब, और बी.आर. अम्बेडकर को याद करती है। तो ये जो विषय आज आया कि बाबा साहब ने वोटिंग राइट दिया, मैं उन सदस्यों का भी सम्मान करता हूं। एक कांग्रेस की ज्योतिमणि ने एक कटाक्ष किया कि महिलाएं, दलित महिलाएं पानी के लिए तरसती थी। अब दलित महिलाएं पानी के लिए तरसती थी तो ज्योति जी राज किसका रहा? अब तो हर घर में नल और उससे जल उपलब्ध कराने का काम मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, महिलाओं में जो जागृति आई, ये आंकड़े प्रमाणित हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि 2019 के जनरल इलेक्शन में जनप्रतिनिधि चुनने में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। ये महिला जागृति है, और आज हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, महिलाओं को और सशक्त कर रहे हैं। पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2 रहा, वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18 रहा। तो महिलाएं जागृत भी है और इस देश के प्रति एक अच्छा भाव भी रख रहे हैं। मैं अब एक, चूंकि बहुत सी चीजें आ गई है, मैं आपको आगे लास्ट में आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और आज हम इस लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं को उनका अधिकार देकर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास करके, नारी शक्ति को वंदन कर रहे हैं। इसको पास करके भारत के प्रधान सेवक, सच्चे कर्मयोगी साधक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रच रहे हैं। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति को हाथ जोड़ करके वंदन करता हूं। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से, अध्यक्ष जी, हाथ जोड़ करके वंदन करता हूं। पंक्तियां क्या है? पंक्तियां, नारी शक्ति तेरा वंदन है, नारी शक्ति तेरा वंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। नारी शक्ति का मान बढ़ेगा, नारी शक्ति का मान बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा, शान बढ़ेगी, आन बढ़ेगी, नारी की पहचान बढ़ेगी। सपनों को अब पंख लगेंगे, घर के आंगन तक नहीं रुकेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मिलजुल करके काम करेंगे, देश हमारा विकसित होगा, देश हमारा विकसित होगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। जन जन अब जयगान कर रहा है, जन जन अब जयगान कर रहा है। नारी शक्ति तेरा वंदन, वंदन है और अभिनंदन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को आप कंसीडरेशन के लिए लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए 8 घंटा हो गया ये चर्चा,
एक क्लैरिफिकेशन थर्ड रीडिंग में मैं पूछना चाहता हूं। 2 राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो रिजर्वेशन वीमेन के लिए होगा वो स्टेट स्पेसिफिक होगा। ये जो बिल हम आज पारित कर रहे हैं वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। ये पूरा देश भर में 1/3 रिजर्वेशन होगी हमारे लोकसभा में। तो इसमें क्या होगा, मेरा ये संशय है, इसको अगर दूर कर सकते हैं, इसको अगर दूर कर सकते हैं हमारे मंत्री महोदय तो आसान होगा। संशय ये है सर कि कुछ स्टेट में ज़्यादा महिलाएं चुन के आएंगे या रिजर्व रहेगी और कुछ स्टेट में ये कम होगा। तो इसके लिए कुछ प्रावधान आप करेंगे या डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर ये छोड़ देंगे? इसके बारे में कुछ स्पष्टता इस विधेयक में नहीं है। रोटेशन के बारे में भर्तरी मेहता साहब ने जो विषय उठाया वो आर्टिकल 332A, जिसमें हम 332 में जो 332A जोड़ रहे हैं, रिजर्वेशन सीट इन असेंबलीज। इसमें मेरा यह कहना है भर्तरी साहब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम 33% आरक्षण कर रहे हैं। सीट जितनी होगी, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं 200, तो 66 हो जाएगी महिलाओं के लिए। अगर कभी 300 हुई तो 99 हो जाएगी। तो ये सबके लिए। गृह मंत्री जी, मेरी समझ है ये काम डिलिमिटेशन कमीशन ही करेगा। सीटें कौन राज्य में कितनी होगी और कौन सी होगी, ये सारा काम डिलिमिटेशन करेगा। इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन को दिया गया है, जिससे निष्पक्ष रूप से क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत, सार्वजनिक सुनवाई के तहत ये चीजों को तय किया जाए। बिन राजकीय रूप से होगा और पारदर्शी तरीके से। माननीय सदस्यगण, इसके पहले कि मैं विधेयक को विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूं, मैं सभा को ये सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मत विभाजन द्वारा होगा। चूंकि इस सदन में डिवीजन नंबर अभी आवंटित नहीं किए गए हैं, अतः मतदान पर्चियों के वितरण द्वारा होगा। लाबियां खाली कर दी जाए। डिवीजन नंबर भी इसलिए आवंटन नहीं हुआ था कि आपके दलों ने अभी हमें आवंटन करके नहीं दिया था, इसलिए। Your Tata Play box is not receiving signal. In case it's cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please power off your Tata Play box and check that all wires to your box are firmly connected. Post this, select the proper AV mode on your TV and then power on your box. Your Tata Play box is not receiving signal. In case it's cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please power off your Tata Play box and check that all wires to your box are firmly connected. Post this, select the proper AV mode on your TV and then power on your box. Your Tata Play box is not receiving signal. In case it's cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please power off your Tata Play box and check that all wires to your box are firmly connected. Post this, select the proper AV mode on your TV and then power on your box.
टेक्नोलॉजी से कितना टाइम बचता है। माननीय सदस्यगण, अब महासचिव पर्चियों द्वारा मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। I have to inform the honorable members that division will take place under Rule 367 AA by distribution of slips. All members seated in the Lok Sabha chamber will be supplied at their seats with eyes, nose, printed slips for recording their votes. Eyes slips are printed on one side in green, both in English and in Hindi, and nose in red on its reverse. On the slips, members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, identity card number, constituency, state/union territory, and date. Members who desire to record abstention may ask for the abstention yellow color slip. Immediately after recording one's vote, each member should pass on the slip to the division officials who will come to their seat to collect the same for handing over to the officers at the table. Members are requested to fill in only one slip for division. Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the division officials. हिंदी में बोल दें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि नियम 367 क के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा मत विभाजन किया जाएगा। लोकसभा कक्ष में बैठे सभी सदस्यों को अपने मतों को अभिलिखित कराने के लिए मुद्रित हाँ/ना पर्चियां उनके स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्ची के एक तरफ हरे रंग में हाँ और दूसरी तरफ लाल रंग में ना अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मुद्रित हैं। सदस्य कृपया पर्ची में अपनी पसंद का मत अपने हस्ताक्षर करके तथा अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अभिलिखित करें। जो सदस्य मतदान में भाग न लेने वाला मत अभिलिखित करना चाहते हैं, वे मतदान में भाग न लेने वाली पीले रंग की पर्ची की मांग करें। प्रत्येक सदस्य एक बार अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात तत्काल पर्ची को उस मत विभाजन अधिकारी को देंगे, जो उसे सभा पटल के पास उपस्थित अधिकारियों को सौंपने के लिए उनके स्थानों पर इन्हें लेने के लिए आएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि प्रत्येक मत विभाजन के लिए केवल एक ही पर्ची भरें। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि जब तक मत विभाजन अधिकारियों द्वारा पर्चियों को एकत्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक वे अपनी सीट न छोड़ें। माननीय सदस्यगण, अब मैं विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक पर विचार किया जाए। अब मत विभाजन।
माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री N.K. प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? Sir, 1 minute. Sir, I have given notice of amendments to clause 2, clause 3 and clause 4. Almost all the amendments are one and the same. So I may be given 1-2 minutes to just to elucidate what is the scope of my amendment. Sir, the amendment is in almost all the clauses, as nearly as may be 1/3 of the seats reserved for the scheduled caste, as nearly as may be 1/3 of the total number of seats to be filled and by direct election. So my amendment is delete as nearly as may be, and my amendment and the operating portion shall be 1/3 of the total number of seats shall be filled by direct election. So shall be has to be incorporated, as nearly as may be omitted. Otherwise it will be creating utter confusion. Government is having the government is having the discretion to do at any time, as early as may be deleted, and it should be a mandatory provision that 1/3 of the seats should be reserved for the women who are entitled for getting reservation. This is my amendment. Kindly, sir, it is a harmless amendment. It can be accepted. गृह मंत्री जी, इसमें किसी भी सदस्य को संशय करने की जरूरत नहीं है। नियरली शब्द प्रयोग केवल और केवल जहां 1/3 का भागाकार नहीं होता है वो संख्या के लिए रखा गया है, और ये भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगी, गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। तो कृपया आपका संशोधन आप वापस ले, ऐसा मेरा निवेदन है। Subject to that clarification, I am withdrawing the amendment. Okay. असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करेंगे? सर आप खड़े हो जाओ, चालू हो जाएगा माइक। सर, आई एम मूविंग माय अमेंडमेंट सर, एंड आई एम आस्किंग फॉर अ डिवीजन ऑन इट। आपके पक्ष में कोई नहीं है। अल्लाह। ओके। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन 37। लोबियां पहले से खाली, अब खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन। एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन हो गया, क्लियर कर देता हूं मैं। एक मिनट क्लियर कर देता हूं। लोबियां पहले से खाली है, अब मैं खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन हो गया क्लियर।
माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब खंड 2 विधेयक का अंग बना। श्री आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करेंगे? श्री एन.के. प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 9, 10, 11 और 12 प्रस्तुत करेंगे? Not moving. प्रोफेसर शौकत राय, नहीं है सर। एम आरिफ, क्या आप संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करेंगे? नॉट मूविंग। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करेंगे? Yes, sir. Sir, I'm moving the amendment and I request you to for division, sir, because this is very important for seat. प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 38 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 38 अस्वीकृत हुआ। श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी, क्या आप संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत कर रहे हैं? नो। I.B. डन जी, क्या आप संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत कर रहे हैं? नो। सर एक सेकंड के लिए। सर इट्स अ वेरी गुड सजेशन बाय 1/10 ऑफ द टोटल नंबर। लाबियां पहले से खाली है। अब मैं खंड 3 को सभा के मतदान के रखता हूं। प्रश्न ये, खंड 3 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन।
माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, 454, 454, ना 2, 2। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। खंड 3 विधेयक का अंग बना। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा क्या संशोधन संख्या 14, 15, 16, 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? प्रश्न है कि संशोधन संख्या 14, 15 नो नॉट मूविंग। आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत कर रहे हैं? नो। असाउद्दीन, श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत कर रहे हैं? Yes, sir. I'm moving, sir. I'm moving, sir. प्रश्न है कि संशोधन संख्या 40 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 40 अस्वीकृत हुआ। लाबियां पहले से खाली है। अब मैं खंड 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन।
माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 454, 454, ना 2, 2। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री महोदय, खंड 5 में संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करेंगे। Honorable Speaker, sir, I move the amendment number 2. प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। बता देंगे मंत्री जी, बता देंगे क्या अमेंडमेंट नंबर 5। माननीय मंत्री महोदय, खंड 5 में संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया गया। Rule 88 and coupled with 376 of the Rules of Procedure and Practice in Lok Sabha. Sir, kindly go through clause 5, subclause 4 and clause 6 of the bill. Both these provisions are identical and similar. By virtue of Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, two identical motions can never be passed in one session. And further you see what is the meaning of clause 4 and clause 6. Both says that this amendment will not be affected the houses until it is being dissolved. The same repetition is come in clause 6 also. I do agree that there is a difference is there. So my suggestion is, this is a drafting error, poor drafting of the legislation. This clause 4 has to come as the proviso of clause 1 of 334A. Either the minister may kindly give the clarification, otherwise this has to be ruled by the Honorable Speaker, otherwise it will be creating confusion among the public. On a perusal of these two provisions, it is purely repetition. Clause 4 of 334A and clause 6 of the bill, these are two identical, that may be ruled, sir. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, जो प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं, बाकी जो क्लॉज हैं जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा, और 6 है वो बिल का पार्ट रहेगा। जब तक जो सदस्य डिसोल्यूशन नहीं होगा कोई सदन, तब तक वो बिल का पार्ट रहेगा। ये आपको पहले से भी क्लियर किया है ना। श्री आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करेंगे? नॉट मूविंग सर। श्री सोगत राय जी। श्रीमती प्रतिमा मंडल, नॉट मूविंग। श्री टी.एन. प्रतापन, क्या आप संशोधन संख्या 2930 प्रस्तुत करें? श्री बेनी बैनन, क्या आप संशोधन संख्या 3435 प्रस्तुत करेंगे? श्रीमती के कनिमोजी, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करेंगी? नो सर, नॉट। श्री एम के राघवन, क्या आप संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करेंगे? श्री आई बी एडन, क्या आप संशोधन संख्या 4445 प्रस्तुत करेंगे? लाबियां पहले से खाली है। अब मैं यथा संशोधित खंड 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि यथा संशोधित खंड 5 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन।